best suggestion is that you always keep on studying on the best materials, because the examination is conducted by NTA, so always you will feel a very high quality of questions. So exit examination, maybe the benefits are there. If you are targeted to the competitive examination also, there also you will get a benefit, and always you will allow to get the important things are there. So as per you are in a press batch. In a press batch, always you think that you have to concentrate on the exam, objective examination. And see, always I will say that pharmacy is, if you have selected a pharmacy, whatever you are doing the past, but once you have added pharmacy as your career, so always think to grow with the pharmacy. Getting up, जब भी आप पहले क्या करते थे, नहीं करते थे, that is not at all a matter. Once you, because this is the starting career of safety, तो जब आप जुड़ गए किसी भी कोर्स में, any course you are selecting, जब जुड़ गए, हर आदमी there are so many courses in the future. So whatever courses you are there or you are selecting as a career, so what is your benefit is there, you go with that course and try to increase your knowledge. Just in you, how the more you are collecting a knowledge, but as the person, as a student, what is your target is that you can increase your knowledge. So many people have come to me regarding hostel, is a one condition. Hostel will also get allotted. Once your pressure, always it is clear in the picture that once your pressure is completed, then hostel. So many empty writing, so many actions. So that we cannot prevent it, because see other places what is happening, so many blocks are there. Other places, maybe if you go to the bigger university or institute, so many blocks are there. So if blocks are there, easily we can distinguish. Where this block is for this, this block. Once you get a places, easily, happily we can accommodate it. I think to the new year, 20 books are not available in the library. So we are also in the process of getting that year. And recently the Kaju publication has come yesterday and he has given some books and all of that. We have not tried. In a current time, what is my best suggestion is that try to increase your knowledge. Yeah, नहीं है, that is not a top matter, because see, सब कुछ तो आपका कोई ले सकता है, लेकिन आपके पास दिमाग और नॉलेज है, nobody will take. जो कौन सा आपके ब्रेन में चला गया, तो nobody will going to take. So what is your that is your main asset. That knowledge is your the main asset. Nobody will take. My best suggestion is that increase your knowledge, and that knowledge keep as asset. Other things are almost not important. And try to give some time to studies. Try to give some time. Not in a, at least you go for an hour. In a day, 1 hour. Holiday you enjoy, but daily at least 1 and 2 hours you will try to give on a study part. Related to your subject related on what are the important subjects. So it will always get a benefit. And I am saying you have selected a very nice and excellent course. See, pharmacy is a very excellent, because once in the COVID time also see, pharma people have come from ground to the top and then serve the people. So always you think you have selected, because today your welcoming day is there, so I will say you that you have selected a very good course. And if you now recently the course has been changed. What my suggestion is there, you always selected a very good course. What is your target is there, try to increase your knowledge, and that knowledge will always help you to grow in a career. So that my best suggestion, because you are very initial phase. And this stage, once you will set in a brain that भैया हमको पढ़ना ही है and I have to get the knowledge, तो future आपको help करेगा, ठीक है? All the best for the future. इसके बाद गुरु भिन्न ज्ञान मिले, गुरु भिन्न दिशा निर्देश, गुरु भिन्न ज्ञान मिले, गुरु भिन्न दिशा निर्देश, गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बाद हम राजकीय फार्मेसी संस्थान के एक्स प्रिंसिपल सर डॉक्टर सुरेंद्र सर से नम्र निवेदन करेंगे कि आप भी 2 शब्द बोल के हमें अनुग्रहित करें। आज हम लोग बैच 2022-2024 को अपने सीनियर लोग के द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग एकत्रित हुए हैं।
छात्र और सेकेंड ईयर के छात्र हैं एकत्रित। मैं कुछ बातें शॉर्ट में करना चाहता हूँ जो आपको जानना चाहिए। 1958 में इस संस्थान की स्थापना हुई। 1958 से पहले जब जाएंगे तो हमारा काउंसिल बना बिहार स्टेट काउंसिल 1954। उसके और पहले जाएंगे तो फार्मेसी एक्ट बना 1948 में। उसके बाद उस एक्ट के तहत में गठन हुआ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949 में। इसका मतलब है कि देश की आज़ादी 1947 में होने के पूर्व जितनी दवा की दुकानें थी वो सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर चलता था। ये बात ब्रिटिश लोगों ने समझा। 1938-39 के समय में कर्नल चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा है कि इसको कैसे क्या किया जाए कुछ अच्छा हो। उन्होंने रिपोर्ट दिया होगा 1940 में। फिर बीच में बहुत सा मूवमेंट चला, वर्ल्ड वार हो गया, ये सब के चलते डिस्टर्बेंस रहा होगा। और जब देश आज़ाद हुआ तो कर्नल चोपड़ा के जो समिति का अध्यक्ष थे उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया उस हिसाब से एक्ट बना। एक्ट को लागू करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, फिर स्टेट फार्मेसी का गठन हुआ। इस तरह से, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्रोफेसर एम.एल. श्राफ थे जो कि 1932 में PHU में स्थापना कर दिए थे बी फार्म। तो इसका मतलब है कि बी फार्म पहले अपने देश में आया और डिप्लोमा नाम की कोई डिग्री नहीं थी, डिप्लोमा नहीं था, वो आया बाद में आया। तो अपने BHU में आया, BHU के बाद फिर आंध्रा यूनिवर्सिटी में आया, फिर कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में आया, अहमदाबाद में गया, नागपुर यूनिवर्सिटी में आया। इस तरह से फिर चेन्नई में, मतलब पुराने यूनिवर्सिटी में दिया गया। और उसी क्रम में जब भारत सरकार को लगा होगा कि बिहार एकदम अछूता है, तो यहाँ भी उस वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मंत्री होंगे उन्होंने लिखा होगा यहाँ सरकार को 1955-56 में। तब तक में आपका एजुकेशन रेगुलेशन लागू हो गया। जब एजुकेशन रेगुलेशन लागू हो गया तो इसका मतलब है कि कोई कॉलेज यहाँ बन सकता है। तो उस योजना में एक कॉलेज की स्थापना की गई, राजकीय फार्मेसी संस्थान अगमकुआं पटना। इसको स्कूल ऑफ फार्मेसी बोलते थे उस वक्त में, और स्कूल ऑफ फार्मेसी बना 1958 में। तो 1958 से लेकर के आज तक वो इतना दिनों तक चलते रहा। और अब डिप्लोमा की संख्या, डिग्री की संख्या, मास्टर डिग्री की संख्या, PhD की संख्या, RD की संख्या, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता हुई काउंसिल उसी हिसाब से कोर्स करिकुलम को बना के चला गया, उसमें सुधार भी होते चला गया। और आज की परिस्थिति में हम लोग एजुकेशन रेगुलेशन 2020 लागू हो गया, जिससे आप लोग आच्छादित हैं। उसी के अंतर्गत में आप लोग की पढ़ाई हो रही है और उसी में एग्जिट एग्जामिनेशन भी आप ही के बैच से शुरू हुआ। मतलब वो ऐतिहासिक चीज़ें हुई जिसको कि आप फिटनेस कर रहे हैं। पहला बैच है कि एक आपसे रेगुलेशन 2020 लागू हुआ, पता नहीं आगे का रेगुलेशन कब बनेगा, लेकिन 2020 के आप प्रथम छात्र हैं। एग्जिट एग्जामिनेशन में भारत सरकार केंद्र से PCI लेगी, उसका भी जब आप पास करके निकलेंगे तो आपके सामने दो चुनौतियाँ होंगी। जो पुराने बीच से चल करके सिलेबस चल रहा था उससे हटा, ठीक है ना, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी जीवन में जब हम किसी टेक्निकल कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले
यह आपको दिमाग में लाना चाहिए कि मेक ए सर्वे आफ्टर सिचुएशन। व्हाट इज द सर्वे? जब इंटर करेंगे तो यहाँ कौन कौन व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण है, कौन कौन व्यक्ति एकेडमिक कार्य करता है, कौन कौन व्यक्ति एकेडमिक कार्यों को टालता है, कौन कौन व्यक्ति एकेडमिक कार्य जो दिया गया है उसको कल आए परसों आइए करता है। ये आप बोले नहीं, लेकिन आप समझ इस बातों को। और कुछ ऐसी जड़ी बूटी जिस तरह से संजीवनी बूटी खोज लिया जाता है, आप खोजें, लेकिन आज तक आप लोग असफल हैं। आप लोग खोज नहीं दिए हैं कि यहाँ संजीवनी बूटी किसके पास है, इसका लेंगे। अब आप बताइएगा हमको बात चल करके कि इस कॉलेज में कौन शिक्षक सबसे एफिशिएंट है, जिसके पास संजीवनी बूटी हुआ है, जो आपकी सब पैतरनी को पार करेगा। अभी तक आप अज्ञान हैं, नहीं जानते हैं, ना उनको फॉलो करते हैं। आपका पूरा सिस्टम आधारित है डिप्लोमा का 29 चैप्टर फार्माकोलॉजी का। आप लोग कभी फार्माकोलॉजी टीचर के पास ज्ञान करने जाते नहीं हैं, न उनको खोजते हैं। आपके यहाँ 2 फार्माकोलॉजी के शिक्षक हैं, अगर उनको आप पकड़ लें आपकी पूरी नैया पार हो जाएगी। क्योंकि वही जो 29 चैप्टर है जीवन में काम में ज़्यादा आता है। और दवा के दुकानों पर जाइएगा तो 29 चैप्टर ही आपको दिखाई पड़ेगा। उस 29 चैप्टर के ज़्यादा 2 आदमी हैं अपने कॉलेज में, और उनसे आप मुलाकात में, इसीलिए मैंने कहा कि संजीवनी बूटी खोजना है। आप संजीवनी बूटी खोजें, इलाज तो अपने आप हो जाएगा। अब आपको खोजना है कौन शिक्षक में यह क्षमता है। तो अब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे तो हम हिंट देते हैं, और उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोड़ दीजिए। बाकी सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट हैं वो सब है। अब रह गई इस तरह के आयोजन, इस तरह के आयोजन हमेशा करते रहिए। क्योंकि जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था तो जितने बच्चे इस तरह का आयोजन करते थे वो सभी विदेश में हैं, और जो बच्चे नहीं आयोजन में भाग लिए वो अब यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इस तरह का आयोजन बहुत लाइफ में ज़रूरी है, ताकत देता है, बोलने की क्षमता देता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है, एक दूसरे को जानने का एक अवसर प्रदान करता है। और ऐसे आयोजन छोटा सही बहुत मार्मिक हमको अच्छा लगा कि फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे, हमको लगता है कि 1958 के बाद पहली बार मैं देख रहा हूँ, जब से तो मैं 38 साल से, उसके पहले और भी ऐसा नहीं हुआ कि सभी बच्चे आए और सभी गुरुजनों का करके आशीर्वाद लें। ऐसा बुरा नहीं है, ये अच्छी आदत है। संस्कार, अनुशासन, ये सब तो रहना ही चाहिए। कहीं कहीं पर अगर कुछ दिक्कतें होती है तो हम लोग से पूछताछ निर्भीक होकर के करना चाहिए। तो यहाँ मैं अब 2 चीज़ का सजेशन दिया कि एक संजीवनी बूटी खोजिए अपने कॉलेज में, कि जिससे कि आपका नया पार लगेगा। और यहाँ है शिक्षक, जो भी 12-13 शिक्षक हैं, उसमें 2 शिक्षक हैं ऐसे जो कि संजीवनी बूटी रखे हुए हैं, लेकिन उसको आपको खोजना पड़ेगा। कोई दो टीचर्स, उनको आपको पकड़ना है। वो अब आप डिस्कस कीजिए, नहीं पता लगेगा तो राम सर हमसे पूछ लीजिएगा, हम लोग बता देंगे, ठीक है। बाकी फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, या अन्य सब्जेक्ट है, या बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका फॉरेंसिक है, स्टूडेंट्स, तो ये सब सब्जेक्ट का ज्ञान तो एक अलग है, जो कि जीवन में कहीं न कहीं पर थोड़ा काम देता है। ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट को बनाया गया ही है कि आपको कुछ लड़के बी फार्म करेंगे, इसमें कुछ एम फार्म करेंगे, कुछ और आगे बढ़ेंगे, ऐसा करते थे। एक चेंज हो रहा है, शेड्यूल में चेंज हो रहा है। IIT में कभी फार्मेसी का PhD नहीं होता। अभी मैं 2 मिनट पहले मैं व्हाट्सएप पर देख रहा हूँ IIT बॉम्बे से फार्मेसी में PhD का निकला हुआ। इसका मतलब कि
ऊपर जाने पर आप IIT तक भी जा सकते हैं। IIT में ऐसे घुसना आसान नहीं है, लेकिन एक उस हॉराइजन में, उस क्षितिज में अब जाने के लिए द्वार भारत की सरकार खोल रही है। सब ऊपर जा करके साइंस एक तरह का ही हो जाता है ना। तो यहाँ आए हैं, यहाँ की गरिमा को बरकरार रखना है। हॉस्टल में रह रहे हैं या नहीं भी रह रहे हैं तो आगे रहेंगे, तो कैसे हॉस्टल में रहा जाता है वह भी एक कला है। हमेशा ईगो में तो कभी नहीं रही, ईगो लेस हो जाइए। जो भी है जीवन में, जो कम है वैसी है, उसी में आनंद उठाना है, क्योंकि जीवन बार बार तो आएगा नहीं। जीवन एक बार दिया गया है, कष्ट में या किसी लोगों ने कुछ कहा उसको लेकर के भागना वो सब चीज़ों से दूर ही रहे तो आदमी इंसान अच्छा है। ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि हमको पढ़ना है, और पढ़ कर करके जब पढ़ लेंगे, जब अच्छा से पढ़ लेंगे तो जॉब तो आपके सामने रहेगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो पढ़ने पर भी ध्यान देना है। ये सब जो छोटा मोटा कार्यक्रम है इसमें खर्च होते हैं। फाइनेंशियल हर आदमी जो बच्चा रहता है कहीं न कहीं से उसको फाइनेंस बाहर से आता है, माता पिता से आता है, भाई बंधु से आता है। उसी में से आप काट कर करके ये सब करते हैं, जो भी चीज़ आयोजन करते हैं इसमें कुछ खर्चा होता है, लेकिन छोटे खर्चा से भी आयोजन को करते रहना चाहिए। बीच बीच में प्रिंसिपल साहब जनरल्स हैं, आपका आयोजन के बाद सुनिए, उन्होंने कहा कि सफाई करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग को बनाने में आपत्ति है और आयोजन में भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं, बल्कि आकर करके हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। चलिए इन्हीं के शर्तों के साथ मैं गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन वाला गुरु है मेरे अनमोल। अब इसके बाद हम राजकीय फार्मेसी संस्थान के विनोद सर से अनुरोध करेंगे कि अपने मुख्य वाणी से दो शब्द रखें और हम लोगों को अनुग्रहित करें। इस वेलकम पार्टी में उपस्थित हमारे प्रचार डॉक्टर राम कुमार चौधरी, हमारे इस बिहार के फार्मेसी के गुरु सब छोटा पड़ जाता है, महागुरु हमारे शैलेंद्र सर, हमारे संजोग से बैचमेट और हमारे मित्र संजय सर, और यहाँ उपस्थित हमारे छात्र, कुछ नए छात्र हैं, कुछ पहले के छात्र हैं। पहले के छात्रों ने सर वेलकम पार्टी दिया जिसमें आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बधाई देता हूँ। शायद स्कूल के बाद, जब मैं स्कूल पास किया उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम देखा इस तरह से जो सारे बच्चे एडमिशन लिए हैं, तो इस तरह से अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श किए, इसके लिए एक ताली लगती है। इस पर आज के डेट में ये संस्कार देखने को बड़े कम ही मिलते हैं, बहुत अच्छी बात और बड़ी बात। जैसा कि प्रचार महोदय ने बताया कि नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ। लास्टली देखिए, आप जो है अभी डिप्लोमा में आपने एडमिशन लिया, ये फार्मेसी का बीज है, सीड्स, यही आगे चल के पौधा बनता है। आप यहाँ जो सीखते हो टैबलेट क्या, कैप्सूल क्या है, सिरप क्या है, कुछ लॉस के बारे में जानते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, फार्माकोलॉजी सीखते हो। सर ने बताया कितना इम्पोर्टेंट है 29 चैप्टर्स है, उसको फॉलो करना है। आपको करने का मतलब पूरे शरीर को आपको जानना है, इसके इलाज के तरीकों के बारे में भी समझना है, इसके मेडिसिन के बारे में समझना है, उसके इफेक्ट को समझना है, उसका साइड इफेक्ट को समझना है। मोटा मोटी जो बेसिक्स है फार्मेसी का, उसको आपको कवर करना है। ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। आप अगर इस बेस को अच्छे से तैयार कर लेते हो, अगर इसकी पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो, तो नो डाउट पूरे लाइफ में आपको फार्मेसी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये हमेशा डेली फार्मेसी के फील्ड में तो डेली काम आती है। आप कहीं भी हो, दवा दुकान में हो, आप अस्पताल में हो, बाद में दवा कंपनी में हो, ये बेसिक्स बातें हैं। कोई भी जो बड़ा पेड़ बना है किसी बीज से बना है, वो बीज उसके सारे गुणों को कैरी करता है ना। इसके साथ सैलेंडर ने पूरे आपके फार्मेसी के इतिहास को निचोड़ डाला, सारी बातों को बताया, 1932 से लेके आज तक के पूरे इतिहास को बताया। और आपको कभी भी मेरे हिसाब से वेलकम है, आप नॉलेज बढ़ाने के लिए कभी भी हमारे प्रचारक हैं या शैलेंद्र सर हैं या हमारे प्रेसिडेंट संजय सर या मैं जो उपस्थित या और भी लोग हैं, कभी भी आपको कोई दिक्कत हो पढ़ाई लिखाई के समय में कुछ नॉलेज लेना हो, ऑलवेज आपका वेलकम है। आप सीधे आइए, पूछिए, हम लोग तैयार हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। ऑलवेज सारे लोग कोऑपरेटिव हैं और आप पॉजिटिव रहिए लाइफ में। देखिए इफ वर्ड जो है ना लाइफ को, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है, निगेटिव करता है। आप अगर निगेटिव सोचोगे, इफ वर्ड में रहोगे, ये नहीं है वो नहीं, कमियाँ खोजोगे तो हजारों कमियाँ दिखेंगी। आपको इसमें देखना है कि मेरे लिए पॉजिटिव क्या है, सपोर्टिव कौन है, मैं कैसे इसे ओवरकम कर सकता हूँ कभी। आपको उस पर फोकस करना है, अपने गेन पर फोकस करना है कि मैं अपने नॉलेज को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना। आपको ऑलवेज अपने बेटरमेंट को फोकस करना है, कैसे बेटर हो सकता है हमारे लिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, मैं देख रहा हूँ आपका स्टेज में सजा हुआ है, तो बहुत सी और प्रोग्राम जो होने वाले हैं उनके बीच में बाधा नहीं करना चाहता। अंत में मैं आपसे यही कहते हो, ये दरिया तेरी अब खैर नहीं है, ये दरिया तेरी अब खैर नहीं है, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान ना समझ बुज़दिल को, लहरों ने बगावत कर दी है। ये परवाने हैं मौत शमा, मरने का तो खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे छूना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी। इन दो शब्दों के लिए हम सर का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिया ज्ञान का भंडार हमें, दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। दिया भंडार ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। हैं आभारी उन गुरुओं के हम जो किया कृतज्ञ अपार हमें। भगवान ने दी जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, भगवान ने दी जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, पर सीखने और पढ़ाई के लिए ये गुरु हम हैं तेरे शुक्रगुजार। अब हम राजकीय फार्मेसी संस्थान के संजय सर से नम्र निवेदन करेंगे कि कृपया अपने मुख्य वाणी से 2 शब्द बोल के हमें अनुग्रहित करें। इस वेलकम डे के अवसर पर पधारे हुए हमारे प्राचार्य डॉक्टर राम कुमार चौधरी, परमादरणीय डॉक्टर शैलेंद्र सर हमारे मित्र, और इस संस्थान के विनोद सर, कुलवर्ती छात्र, कुलवर्ती तो नहीं सीनियर छात्र और जो फ्रेशर बैच है, सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड सारी बातें सब लोगों ने काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी विस्तार में बताई हैं। मैं उसमें थोड़ा कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हमारे बिहार के लोगों की एक मेजर प्रॉब्लम है कि हम पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, हम पढ़ाई को काफ़ी सीरियसली लेते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन लाइफ केवल पढ़ाई से नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो सारे टॉपर्स, सारे हाई रैंकर्स आज सारे बड़े बड़े पदों पे होते। ऐसा नहीं है। आपको इक्वली अपने पढ़ाई के साथ साथ आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने आप को कैसे इवेल्युएट करते हैं,
आप दूसरों को कैसे इवेलुएट करते हैं, आप दूसरों के बारे में कैसे ओपिनियन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें लाइफ में एक्सेल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत, जैसे आप 2 साल अगर लगाते हैं डिप्लोमा लेने में, 2 साल मतलब 365 मल्टीप्लाई बाई 2, 800 कुछ दिन हुआ, नहीं सॉरी 700 कुछ दिन में, 700 दिन में अगर आप उसका 1/10 जितना आप पढ़ाई में टाइम लगाते हैं उसका 1/10 भी आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। उससे अभी गूगल पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, उनको सर्व करें और उसको समझने की कोशिश करें। हमारे पास आएँ, हम बताएंगे आपको। बहुत सारे टीचर्स हैं, सीनियर सर लोग हैं, वो आपको बताएंगे। आपको सीखने की इस चीज़ में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप सबके पास है और होगा भी, लेकिन ये चीज़ें जो ग्रे एरिया है इसमें हमारी कमजोरी है। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ और इसीलिए मैं अपनी प्रॉब्लम, जो मैंने वो प्रॉब्लम झेला है लाइफ में, मैं उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में केवल और केवल जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसी से काम नहीं चलता, आपको उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना समझ पाते हैं और कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं। मैं इन सारी चीज़ों के लिए मैंने कई बार मन से भी बोला है, कई बार मैंने अपने वो जो कंप्यूटर रूम है उसके सामने एक नोटिस लगाया था 20 साल पहले कि जो लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो मेरे पास आ सकते हैं। वो पेपर फिलअप हो गया, वो बाहर नहीं जा सकता, वक्त की मार में उसको फेंक कर दिया है। लेकिन अभी तक बाद में मेरे पास 10 लोग भी नहीं आए होंगे कि हाँ ये आपने क्या लगाया और इसका मतलब क्या है। तो आप शायद आपको ये पता नहीं है